Good morning, students. Today we are going to see the third unit of the subject building construction and engineering geology. Already in third unit we covered the roofs, types of roofs. In that we covered the single roof, double roof, triple layer roof. Okay. Now in this lecture we will continue with the floors. This is also part of third unit. Okay. Now what is mean by floors? Before going for that, you all aware with the learning objectives of the subject thrice C03 building construction and engineering geology. Also you are aware with the course outcomes that we had seen in the previous lectures. Today we are going to start the floors, type of floors. Okay, in that basement floor, ground floor and upper floor. Floor finishes. Today we are going to start with the floors. Now what is meant by floor? What is meant by floor? What is the use of floor? The purpose of floor is to provide a level surface. And supporting the occupant and furniture. Okay. What is the purpose of floor? Floor का purpose क्या है कि to provide a level surface for occupants as well as for the furniture. A floor बेसमेंट फ्लोर भी हो सकता, ग्राउंड फ्लोर भी हो सकता, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो आएगा we called it as the upper floor. That may be the first floor, second floor or third floor and so on. That we referred with the upper floors. Okay, तो फ्लोर का पर्पस क्या हो गया? To provide a level surface for the occupants, for the furnitures. तो अब types of floors, when we deals with the types of floors, we have to see the basement floor, ground floor, upper floor. Okay, these are the types of floors. Basement floor. The construction of floor below the ground surface is known as a basement floor. Okay, below the ground surface, this one may be the ground surface. अब below जो ground surface आप आओगे यहाँ पे इतना stairs उतर के जब आप नीचे आओगे, okay, जो आपको floor मिलेगा we called it as a basement floor. यानी ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो फ्लोर रहेगा we called it as a basement floor. In residential buildings, the basement floors may be used for the living purpose also. In commercial complexes, the basement floors used for the parking, generally used for the parking, or storage, or maybe a storage one also. Okay, so the basement floor, the construction of floor below the ground surface is known as a basement floor. Basement ceiling height shall not be less than 7 feet above the finished floor. क्या बोला है कि ceiling height should not be less than 7 feet above the finished floor. This one is a finished floor. This one is a flooring material. Now we called it as a flooring. Now flooring is different. Floor finishes is different. Flooring and floor finishes both are same. But floor and flooring we referred with the different meanings. Okay. तो जो आपकी clear height आएगी, ये जो आपकी height रहेगी, ये point से लेके ये finished floor तक के, this shall not be less than 7 feet. Okay. A smoke alarm shall be installed
in the basement. All basement stairs have a light source to eliminate all treads and landings. Okay, अगर अंधेरा रहेगा तो क्या हो गया? The stairs will not be visible. So there should be an alternative arrangement, a light source to illuminate all treads and landings. Light shall be operated by a switch located at the top and bottom of the stairs. Okay, light shall be operated by a switch located at the top and bottom of the stairs. These things has to be taken care of in the basement floors. If adding a bedroom and the house is equipped with a gas-fired applicants, a carbon monoxide alarm should be installed in the basement. Should be installed in the basement. So this care should be taken. This care should be taken in the basement floors. So 3 टाइप के फ्लोर्स हो गए, बेसमेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, and third one is your upper floor. Third one is upper floor. Okay, now we will see from the reference book Dr. B.C. Punmiya for the ground floors. The purpose of floor is to provide a level surface, as we already discussed, capable of supporting the occupants, furniture, equipment, and sometimes the internal partitions. To perform this function, and in addition others which may vary according to the situation of the floor of the building and nature of the building, a floor must satisfy the following requirements, that is adequate strength and stability, adequate fire resistance, sound insulation, damp resistance, thermal insulation. Thermal insulations, these are the requirements of a floor. यानी strength और stability रहनी चाहिए, strength और stability रहनी चाहिए, fire resistance रहना चाहिए, sound insulation रहना चाहिए. हाँ, ग्राउंड फ्लोर अगर है तो इट शुड बी अ डैम्प रेजिस्टेंस. अपर फ्लोर के लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट के लिए दिस प्रॉब्लम विल बी देयर, दैट इट शुड बी अ डैम्प रेजिस्टेंस. इट शुड प्रोवाइडेड विद थर्मल इंसुलेशंस. ओके, अब ग्राउंड फ्लोर का मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड फ्लोर? द फ्लोर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड सरफेस. द फ्लोर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड सरफेस आर नोन एज द ग्राउंड फ्लोर्स. डेफिनेशन की तरफ ध्यान से देखो. हाँ, डेफिनेशन में क्या बोला है? द फ्लोर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. लेकिन डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड यानी क्या? ग्राउंड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड. ऐसा नहीं कि कुछ भी है ग्राउंड और उसके ऊपर फ्लोर बना दिया. तो फर्स्टली द ग्राउंड शुड बी प्रिपेयर्ड एंड देन द फ्लोर इज टू बी प्रिपेयर्ड, इज टू बी मेड रेडी. तो फ्लोर देखो, फ्लोर के बारे में क्या बोला हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर, वी आर इंटरेस्टेड इन फ्लोर. ठीक है, फ्लोर का मीनिंग क्या हो गया कि हमको प्लेन सरफेस चाहिए, हमको लेवल सरफेस, प्लेन सरफेस चाहिए. लेकिन हाउ टू ऑब्टेन दैट प्लेन सरफेस? और प्लेन सरफेस चाहिए तो प्लेन सरफेस अगर दे दिया तो विल इट सर्व द पर्पज? ओके, पर्पज सर्व करेगा क्या? तो दैट शुड बी स्टेबल. ऐसा नहीं 10 दिन के लिए स्टेबल है. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट हैव अ लाइफ. ओके, इसलिए बोला है कि इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी अ स्ट्रेंथ, इट शुड हैव अ स्ट्रेंथ एज वेल एज इट शुड बी अ स्टेबल वन. ओके, तो अब स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए. तो ये स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? सो we have to take a proper care, we have to take a proper care for this. Okay, तो proper care कैसे? तो फ्लोर लेड करने के लिए देयर शुड बी अ components of floor, components of layer that provide the stability, that provide the stability as well as strength to the floor. तो कौन कौन से components आते हैं? तो components में देखो क्या क्या बोला है. सब फ्लोर, बेस कोर्स और फ्लोर बेस. हाँ, बेस कोर्स बोलो या फ्लोर बेस, ये हो गया पहला. पहले इसमें सब फ्लोर बोला हुआ है, बेस कोर्स बोला है, फ्लोर बेस, ये हो गया पहला कंपोनेंट. दूसरा कंपोनेंट क्या है? फ्लोर कवरिंग. वी कॉल्ड इट एज अ फ्लोरिंग, वी कॉल्ड इट एज अ फ्लोरिंग. और फ्लोरिंग आपका कौन सा आएगा? टाइल्स आएंगी. ओके, सिरेमिक टाइल्स आएंगी. हाँ, नंबर ऑफ फ्लोरिंग्स आर देयर. ओके, तो दैट इज़ अ फ्लोरिंग. फ्लोरिंग इज़ अ डिफरेंट. तो अब फ्लोर अगर बनाना है कि तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं?
आप कंपोनेंट्स देखो, पहले क्या बोला था, सब फ्लोर बेस कोर्स या फ्लोर बेस। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले द फ्लोर बेस, दिस वन इज अ फ्लोर बेस which supports the floor covering. The object of floor base is to give proper support to the covering. ये जो फ्लोर कवरिंग रहेगा उसको हमको क्या देना है, प्रॉपर सपोर्ट देना है बाय दीज कंपोनेंट्स। तो पहला आ गया आपका कॉम्पैक्टेड अर्थ फिल, पहला आ गया कॉम्पैक्टेड अर्थ फिल, ये हो गया पहला। लेकिन ये सब किसके लिए है, दीज आर फॉर द ग्राउंड फ्लोर्स, दीज आर फॉर द ग्राउंड फ्लोर्स, ध्यान में रखो। हाँ, अपर फ्लोर के लिए तो डायरेक्टली आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, अभी हम नेक्स्ट अपर फ्लोर ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अपर फ्लोर इज डिफरेंट वन, वी आर डिस्कसिंग नाउ, दैट इज द ग्राउंड फ्लोर। ओके, दैट इज द ग्राउंड फ्लोर। तो पहला आ गया आपका ground floors may rest directly on the ground or may be supported on a little distance above the ground. Okay, the floor base of a solid ground floor is shown in figure 11.1. this is figure 11.1. okay, this यहाँ पे क्या रेफर किया है, solid ground floor, this one here written is solid ground floor. the lowest layer just above the ground surface is देख लेते एक बार, is that compacted earth fill. हाँ, पहली जो लेयर बताई हुई है दैट इज द कॉम्पैक्टेड अर्थ फिल, दिस वन इज कॉम्पैक्टेड अर्थ फिल। उसके बाद सेकंड लेयर में आइदर ऑफ लीन सीमेंट कंक्रीट, दिस वन इज सेकंड लेयर, दिस इज द लीन कंक्रीट। आफ्टर दैट लीन कंक्रीट और डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। ओके, समटाइम्स ब्रोकन ब्रिक्स, सेकंड लेयर में आइदर लीन सीमेंट कंक्रीट रहेगा या फिर लाइम कंक्रीट रहेगा और ब्रोकन ब्रिक्स, बैट्स और स्टोन्स, रैम्प प्रॉपरली, देयर शुड बी अ कॉम्पैक्ट प्रॉपर कॉम्पैक्शन। फिर आपका कॉम्पैक्टेड अर्थ फिल पहला लेयर रहो या अदर सेकंड वाला लेयर, दैट शुड बी कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली। ओके, द थर्ड कोर्स मे बी ऑफ सीमेंट कंक्रीट और ऑफ ब्रिक्स और स्टोन अरेंज और पैक्ड प्रॉपरली। ओके, थर्ड लेयर देखो, थर्ड लेयर में क्या बोला है, एक डैम प्रूफ कोर्स डाल दिया, डैम प्रूफ कोर्स में के बाद थर्ड लेयर वन इज योर सीमेंट कंक्रीट, थर्ड लेयर इज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, सेकंड लेयर एंड फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर किसकी थी, लीन कंक्रीट प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड, दिस वन इज द सीमेंट कंक्रीट डैम प्रूफ कोर्स। और उसके बाद फ्लोर फिनिश और वी कॉल्ड इट एज अ फ्लोरिंग, वी कॉल्ड इट एज अ फ्लोरिंग। is to be laid, this one is a solid ground floor, this one is the solid ground floor। हाँ, हमको अगर एक आधा घर बनाया हमने, हाँ, तो ग्राउंड फ्लोर पे अगर फ्लोरिंग लेड करना है उसके ऊपर, तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय दीज कंपोनेंट्स, इफ दिस इज नॉट प्रॉपरली डन, adverse effect will be found after some time for the flooring, after some time यानी कुछ दिनों के बाद इसका आपको adverse effect if not compacted properly, a dam proof course is not laid. okay, a cement concrete is not properly done, okay, and these portions are not compacted in well mannered, okay, there will be the adverse effects on the flooring, and the flooring at some part may come यानी थोड़ा सा ऊपर आएगा या कुछ जगह वो थोड़ा सा दब जाएगा, तो इट विल नॉट प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस, लेवल सरफेस नहीं करेगा, तो इट शुड नॉट गिव अ फील, इट शुड नॉट गिव अ सेफ फील, और इट शुड नॉट बी अ गुड लुकिंग। ओके, सो दिस वन इज अ सॉलिड ग्राउंड फ्लोर। जो डिस्कशन था दिस इज रिगार्डिंग द ग्राउंड फ्लोर। हमने क्या डिस्कशन किया, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर, and that is basically the ground floor, this book is your Dr. B.C. Punya, this book is
the Dr. V.C. Pulmiya. Okay, now अब तक के हमने जो डिस्कशन किया था दैट इज रिगार्डिंग विद द ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, बेसमेंट फ्लोर के हमने अभी भी देखा कि मिनिमम हाइट 7 फीट से कम नहीं रहनी चाहिए. ओके, अदर स्विचेस रहना चाहिए, और अगर गैस फायर्ड अप्लायंसेस है तो द कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म shall be installed in the basement. A carbon monoxide alarm shall be installed in the basement. So this one is a basement floor. Now next one is the ground floor, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया. The upper floors may have the major problem of strength and stability since they are supported only at their ends on walls or beams. Upper floors do not have a problem of damp resistance. This is the very important कि damp resistance का upper floors I think you understand now. It is deals with the first floor, second floor, third floor and so on. This one is your first floor, sorry, basement. This one is the basement. This one is the ground floor. This one is the ground floor. यहाँ पे देखो अब एक 4-wheeler car is there and these are the stairs. These are the stairs. Okay, living room for ground floor. The stairs. Okay, and then a kitchen is there. Okay, this one is a what, bedroom. Okay, so this one is your ground floor. So this one is the ground floor. Ground floor plan. This one is your ground floor plan. Now types of upper floor. This is important one. Now types of upper floor. Depending upon the material used for construction and arrangement, यानी आप मटेरियल कौन सा यूज़ करते कंस्ट्रक्शन के लिए, अरेंजमेंट ऑफ बीम, अरेंजमेंट ऑफ गर्डर. अपर फ्लोर मे बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग स्टेप्स. द अपर फ्लोर मे बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स, नॉट स्टेप्स. ओके, अपर फ्लोर का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है कि बीम की अरेंजमेंट कैसे करते, गर्डर की अरेंजमेंट कैसे करते. अकॉर्डिंगली द अपर फ्लोर्स आर क्लासिफाइड. ओके, यानी जनरली जो प्रीफर्ड होता, इन सिंपल वर्ड, जनरली जो प्रीफर्ड होता वो कौन सा होता, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर. ऑल यू आर अवेयर विद दिस. ओके, यानी हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब आता, ग्राउंड फ्लोर का स्लैब हम उसको पहला वाला स्लैब बोलेंगे, तो वो रहता है आपका आरसीसी स्लैब. उसको आरसीसी, दिस इज द रेनफोर्स्ड, ये हो गया आर. दिस इज सी, आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर. तो पहला स्लैब जनरली अभी जो हम मोस्टली यूज़ करते दैट इज़ द आरसीसी फ्लोर. अब आरसीसी फ्लोर के ऊपर क्या करते, वही प्रोवाइड द फ्लोरिंग. सो अब बीम की अरेंजमेंट और गर्डर्स, बीम बोले या गर्डर्स की अरेंजमेंट यू आर अवेयर. यानी बीम्स कहाँ पे डाले हुए, किसके लिए डाले हुए, फॉर सपोर्टिंग द स्लैब, फॉर सपोर्टिंग द पहला वाला स्लैब. हमने किसको बोला था, पहला स्लैब बोला था, उसके लिए हमने क्या डाले, बीम्स डाले. अब बीम्स डाले तो स्लैब किसके ऊपर रेस्ट हो गया, बीम्स के ऊपर. अब स्लैब के ऊपर हम क्या करेंगे, वी विल लेड द फ्लोरिंग मटेरियल, ओके. पहले फ्लोरिंग बेस बनाएंगे और बेस बनाने के बाद वी विल लेड द फ्लोरिंग. सो अपर फ्लोर, टाइप्स ऑफ अपर फ्लोर के लिए क्या बोला हुआ है कि बीम की अरेंजमेंट कैसी है, उसके बाद गर्डर की अरेंजमेंट कैसी है. डिपेंडिंग ऑन दैट द क्लासिफिकेशन इज मेड फॉर द अपर फ्लोर. तो पहला है आपका स्टील जॉइस्ट एंड स्टोन और प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर. स्टील जॉइस्ट एंड स्टोन और प्रीकास्ट कंक्रीट. ओके, प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर, स्टील जॉइस्ट, ये वर्ड ध्यान में रखो.
सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है, स्टील जॉइस्ट। सेकंड वन इज द जैक आर्च फ्लोर, थर्ड वन इज द रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर, फोर्थ आर द रिप्ड और hollow tile flooring, fifth are the filler joist floor, precast concrete, timber floor. So these are the types of floors. Now we will see one by one, the types of floor. Okay, now तो पहला वाला है स्टील जॉइस्ट एंड स्टोन और प्रिकास्ट कंक्रीट। स्टील जॉइस्ट एंड स्टोन और प्रिकास्ट कंक्रीट, फ्लोर। पहले हम इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन देखने के बाद वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, सो अब देखो क्या बोला है, दिस इज द प्लान ऑफ रूम। सो दिस वन इज द स्टोन स्लैब। ये जो एरो दिख रहा है आपको, दिस एरो, these are the stone slabs, इसलिए यहाँ पे बोला है स्टोन स्लैब स्पैन, स्टोन स्लैब्स एंड RSJ। ये ध्यान में रखो कि RSJ क्या है। R का मीनिंग होता है रोल्ड, S का मीनिंग रोल्ड स्टील जॉइस्ट। रोल्ड स्टील जॉइस्ट, ओके, रोल्ड स्टील जॉइस्ट। अब नीचे के डायग्राम में देखो कि कौन सा रोल्ड स्टील जॉइस्ट है। ओके, रोल्ड स्टील जॉइस्ट कौन सा है? सो यहाँ पे दिया है रोल्ड स्टील जॉइस्ट। ये देखो आई दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखा आई। ओके, अब दिस वन इज ऑल्सो आई सेक्शन, दिस वन इज योर आई सेक्शन। तो आई सेक्शन इज योर रोल्ड स्टील जॉइस्ट, आई सेक्शन इज रोल्ड स्टील जॉइस्ट। जॉइस्ट इज नथिंग बट अ बीम, a steel beam। ओके, सो यहाँ पे बोला है रोल्ड स्टील जॉइस्ट। अब क्या किया, यहाँ से हमने सेक्शन कट किया। क्या किया, वही कट अ सेक्शन। कहाँ से कट किया? यहाँ से कट किया। ये सेक्शन हमने कट किया। सेक्शन जब कट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगी? वॉल दिखेगी। आपको क्या दिखेगी? वॉल दिखेगी। सेक्शन कट करने के बाद यू विल ऑब्जर्व द वॉल। आप बी डायग्राम देखो या सी डायग्राम देखो। ओके, हाँ, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ बी और सी का क्या है। तो अब उसके बाद आपको क्या दिखेगा? ये स्टोन स्लैब दिखेगा। यहाँ पे लिखा है ये स्टोन स्लैब। ओके, दिस वन इज स्टोन स्लैब। These are the stone slabs, these are the stone slabs। सेक्शन कहाँ से कट किया था? यहाँ से। सेक्शन कहाँ से कट है? यहाँ से सेक्शन कट है। ओके, सो दिस इज स्टोन स्लैब, दिस इज स्टोन स्लैब। स्टोन स्लैब के ऊपर आप देखो क्या लिखा है, लाइम कंक्रीट और लाइट वेट सीमेंट कंक्रीट। लाइम कंक्रीट और लाइट वेट सीमेंट कंक्रीट। अब ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक के डाला? ये पॉइंट से लेके यहाँ तक के आपके स्टोन स्लैब्स है। यहाँ से यहाँ तक के क्या है? ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक के योर रोल्ड स्टील जॉइस्ट इज देयर। तो ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देयर आर स्टोन स्लैब्स। स्टोन स्लैब्स को यहाँ पे अंदर बियरिंग गिवन है। ये जो है ना, दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज द बियरिंग। दिस वन इज कॉल्ड एज बियरिंग। इतना बियरिंग गिवन है। अब बियरिंग कितना देना चाहिए मिनिमम गिवन? तो उसके क्राइटेरियाज हैं। हम हमारे मन से नहीं दे सकते, यानी एट द दिस वन इज बियरिंग।
BEARING, ओके, बेयरिंग दिया। और उसके बाद ये स्टोन स्लैब जो है कहाँ पे रेस्ट किया, ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन का जो बॉटम फ्लेंज है, बॉटम फ्लेंज पे हमने ये स्टोन स्लैब को बेयरिंग दिया, यहाँ से यहाँ तक का बेयरिंग है। इतने डिस्टेंस पे वो स्टोन स्लैब रेस्ट किया हुआ है, इतने डिस्टेंस पे स्टोन स्लैब रेस्ट किया हुआ है। सो इट इज़ अ बेयरिंग, इट इज़ अ बेयरिंग, ओके। और उसके बाद क्या है, ऊपर क्या है, लाइम कंक्रीट है। उसके बाद क्या है, लाइम कंक्रीट। और लाइम कंक्रीट होने के बाद आपको जो फ्लोरिंग करना है वो फ्लोरिंग आप करो, जो आप फ्लोरिंग मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, ओके, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अ वेरी सिंपल क्रॉस सेक्शन, वेरी सिंपल क्रॉस सेक्शन। स्टोन स्लैब, स्टोन स्लैब के ऊपर क्या डाला हुआ है, लाइम कंक्रीट, और लाइम कंक्रीट के ऊपर क्या है, फ्लोरिंग। लाइम कंक्रीट के ऊपर है फ्लोरिंग, ओके। एंड फ्रॉम द बॉटम देयर इज अ सीलिंग प्लास्टर, फ्रॉम द बॉटम देयर इज अ सीलिंग प्लास्टर टू द स्टोन स्लैब, टू द स्टोन स्लैब। एंड दिस वन इज द RSJ। RSJ क्या है, अब RSJ जो है दैट इज एम्बेडेड, एम्बेडेड इन द व्हाट, लाइम कंक्रीट और लाइट कंक्रीट, यानी उसको उसमें कंक्रीट के अंदर डाल दिया, कंक्रीट के अंदर डाल दिया, सो एज टू अवॉइड द रस्टिंग, सो एज टू अवॉइड द रस्टिंग, ओके। अब ये क्रॉस सेक्शन हो गया, बी क्रॉस सेक्शन। अब देखो क्रॉस सेक्शन सी, नेक्स्ट वी विल सी द क्रॉस सेक्शन सी। अब क्रॉस सेक्शन सी में दिस वन इज अगेन आई, ये आई कैसा था, अंदर डाल दिया था, ओके, कंक्रीट में उसको एम्बेडेड कर दिया, ओके। अब ये जो आई है यहाँ पे आपको बाजू बाजू में सीमेंट कंक्रीट दिखेगा। दिस वन इज अ रोल स्टील जॉइस्ट, इट रेस्ट ऑन द वॉल्स। दिस रोल स्टील जॉइस्ट रेस्ट ऑन द वॉल्स और स्लैब्स, नॉट स्लैब, सॉरी, this roll steel joist rest on the walls or the girder, on the girder or supporting system, okay। सीमेंट कंक्रीट एनकेसिंग, यहाँ पे दिया है सीमेंट कंक्रीट एनकेसिंग, इसकी प्रैक्टिस करो, हार्डली 5 to 10 मिनट्स ये क्रॉस सेक्शन को लगेंगे, ये क्रॉस सेक्शन को आपको लगेंगे, ओके। आफ्टर दैट दिस वन इज स्टोन स्लैब, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, यहाँ से यहाँ तक के क्या गिवन है, बियरिंग गिवन है, यहाँ से यहाँ तक के बियरिंग गिवन है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बियरिंग कहाँ से कहाँ तक के गिवन है, यहाँ से यहाँ तक के ये बियरिंग गिवन है, दिस वन इज द बियरिंग गिवन। उसके बाद क्या डाल दिया, लीन सीमेंट कंक्रीट, और उसके बाद क्या डाला, फ्लोरिंग डाला, उसके बाद डाला हुआ है फ्लोरिंग, उसके बाद डाला हुआ है फ्लोरिंग। सो दीज आर द क्रॉस सेक्शंस, दीज आर द क्रॉस सेक्शंस। अभी और एक क्रॉस सेक्शन है। सो इसका एक लिमिटेशन दिया है कि स्पैन अगर 3 मीटर से छोटा है, 3 मीटर से छोटा है तो नो नीड, यहाँ पे आपको रोल स्टील जॉइस्ट नहीं दिखेगा। सीधे सीधे क्या किया, यहाँ पे बेयरिंग दे दिया स्टोन स्लैब का, इधर बेयरिंग दे दिया, ओके। एंड आफ्टर दैट अ लीन कंक्रीट इज देयर एंड अ फ्लोरिंग इज देयर, लीन कंक्रीट इज देयर एंड फ्लोरिंग इज देयर, ओके। लीन कंक्रीट और उसके बाद फ्लोरिंग डाल दिया। सो दिस इज अ स्टोन स्लैब फ्लोर। जैसे ही आपको बोला जाएगा स्टोन स्लैब फ्लोर, अब स्टोन स्लैब फ्लोर पे क्या था, फिर से एक बार, जस्ट 2 मिनट्स, स्टोन स्लैब्स, ओके। दिस वन इज बेयरिंग गिवन, ऑन द बेयरिंग देयर इज अ सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट, एंड ऑन दैट अ फ्लोरिंग इज गिवन, okay। It is rest on the walls, it is resting on the walls, okay। So this one is a, आपको नाम लिया कि समझ में आ जाना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन क्या है। स्टोन स्लैब फ्लोर विथ और विदाउट जॉइस्ट, तीसरा वाला कौन सा हो गया, विदाउट जॉइस्ट, रोल्ड स्टील जॉइस्ट, लेकिन बाकी इसमें जॉइस्ट, बाकी इसमें क्या है, जॉइस्ट, ओके। सो दिस वन इज द प्लान, अब हम एक एक पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में। दिस टाइप ऑफ फ्लोर इज क्वाइट कॉमन इन लोकेशन वेयर स्टोन स्लैब्स आर इजीली अवेलेबल। स्टोन स्लैब्स अवेलेबल है तो ऑप्शन लो, नहीं है तो वन कैन नॉट टेक ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। लोकली अवेलेबल मैसन्स लेबर्स इफ देयर देन ओके, वन हैज़ टू डू विद दैट देन ओके। इन स्पैन ऑफ 1 to 3 meters एंड विड्थ 30 to 60 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला, दिस टाइप ऑफ फ्लोर इज क्वाइट कॉमन इन लोकेशन वेयर स्टोन स्लैब्स आर इजीली अवेलेबल इन स्पैन ऑफ
स्पैन कितना रहना चाहिए 1 to 3 मीटर, और विड्थ कितनी रहनी चाहिए 30 से 60, 300 mm से लेके 600 mm, 300 mm यानी 1 फीट, 600 यानी 2 फीट, 1 फीट से 2 फीट तक के उसकी विड्थ रहनी चाहिए. Where stone slabs are not available, precast concrete slab can be used. This is another option. This is another option. This one is another option. अगर स्टोन स्लैब नहीं है, अदर ऑप्शन भी है, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट स्लैब, वो भी आप ले सकते हैं. दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. द स्लैब्स आर प्लेस्ड एट द लोअर फ्लेंज ऑफ, देखो क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, द स्लैब्स आर प्लेस्ड एट द लोअर फ्लेंज ऑफ रोल्ड स्टील जॉइस्ट, at lower flange of rolled steel joist. देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल में डाल दिया, और लोअर फ्लेंज के जॉइस्ट का लोअर फ्लेंज वहाँ पे स्टोन स्लैब रख दिया. ओके, द स्लैब्स आर प्लेस्ड एट लोअर फ्लेंज ऑफ रोल्ड स्टील जॉइस्ट. अगेन द स्पेसिंग ऑफ स्टील जॉइस्ट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द अवेलेबल स्टोन स्लैब्स. अब आपके पास अगर 3 मीटर का है तो आप कितने पे डालोगे, ये लेस देन 3 मीटर पे डालेंगे, लेस देन 3 मीटर पे डालेंगे. और स्टोन स्लैब अगर कम ज़्यादा है, ओके, या फिर कम है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लेस द रोल स्टील जॉइस्ट, क्योंकि लोअर फ्लेंज के ऊपर आपको रेस्ट करना है, लोअर फ्लेंज के ऊपर रेस्ट करना है. ओके ओके, द जॉइस्ट हैव अ क्लियर स्पैन इक्वल्स टू द विड्थ ऑफ द रूम. ओके, जॉइस्ट का स्पैन दिया है, जॉइस्ट कितना रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के आपका जॉइस्ट रहेगा. तो दिस जॉइस्ट, ओके, रेस्ट ऑन दिस वॉल एंड दिस वॉल, द स्पैन इज, दिस वन इज द स्पैन, यानी यहाँ से यहाँ तक का उसका स्पैन रहेगा जॉइस्ट का, रोल स्टील जॉइस्ट का ये स्पैन है. और ये स्पैन के ऊपर, ओके, दिस इज द स्पैन, दिस इज द स्पैन, और इसके बीच में क्या है, स्टोन स्लैब. द स्पेस बिटवीन द टॉप ऑफ द स्लैब एंड द टॉप ऑफ द स्टील जॉइस्ट इज फिल्ड विथ लाइम कॉन्क्रीट, इज फिल्ड विथ लाइम कॉन्क्रीट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीकास्ट और स्टोन फ्लोरिंग एंड स्टील जॉइस्ट. स्टील जॉइस्ट बोला कि आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, एंड स्टोन और प्रीकास्ट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग. सो यू विल बी वेल अवेयर, उसके बारे में आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि विच टाइप ऑफ फ्लोर इज दिस वन. यू शुड एबल टू ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन, you should able to draw the cross section. Now the second one is a jack arch floor. The second one is the jack arch floor. Okay, this we will see in the next lecture. Thank you very much.